अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब, मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। गैस बिजली सब महंगा होगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, -+ का खेल, पाकिस्तान मेजबान आलमी बरादरी मेहमान, शेदी की शादी, और वारिस वरसा को उदास कर गया। सबसे पहले आपको बराह रास्त कराची ले चलेंगे, जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। The contemporary global challenges of climate change reminds us of the significant role of oceans as regulators of natural climate, recyclers of the world's carbon dioxide, and a principal supplier of life-sustaining oxygen. Around 90% of global trade by volume and 70% by value travels via sea. This figure is a remarkable demonstration of not only the significance of maritime domain for international trade, but also of the interdependence of the global economies and the collective interests of all states to ensure that their approaches towards maritime security and the utilization of marine resources remain guided by the spirit of cooperation and collaboration. The Indian Ocean is an economic reservoir of natural resources, both living and non-living. It contains countless varieties of fish, deep sea minerals and fossil fuels, in addition to the vast potential for tourism. Nearly half of the global seaborne trade and 70% of the global traffic of petroleum traverses through the Indian Ocean. The Northern Arabian Sea itself is a resource rich with immense potential to contribute towards Pakistan's economic development. Accordingly, the development of the blue economy is essential to realize this potential, especially in the areas of energy and food security and the exploration of mineral wealth. Development of efficient shipbreaking industry, transshipment ports, fisheries industry, coastal tourism, water sports, aquaculture are a few areas which merit our attention. We must also have more focus on conservation and sustainability, so that we can not only benefit from our ocean resources, but also ensure a sustainable benefit for future generations. To achieve maximum results, integration of public-private partnership amongst maritime industries is a must. New idea entrepreneurship and management skills mastered by the private sector are indispensable for success in all public sector industries, including defense. The potential of academic and R&D organizations must be incorporated for enhancing efficiency and productivity for our maritime sector. At the government level, we will continue to strive and create a business and environment friendly in an environment for investment in human capital and professional development in this demand-driven industry. Ladies and gentlemen, Pakistan carries out more than 95% of its trade via the sea. The economy of Pakistan is therefore wedded to sea-based commerce. Our vision of geoeconomics is built around Pakistan's ideal location to act as a hub of trade and energy connectivity and integration between Asia, Europe and Africa. और अब कुछ बात इसहाक डार के बयान की। महंगाई का बम नहीं, एटम बम फटेगा, टैक्सों का बोझ बढ़ेगा, बिजली गैस सब महंगी होंगे। वजीर खजाना इसहाक डार ने हद दर्जे इत्मीनान के साथ गिरानी का मिसाइल चला दिया। 170 अरब के नए टैक्स लगाने का ऐलान किया। बोले मिनी बजट लाना पड़ेगा, नए टैक्सेस में GST भी शामिल है। कोशिश करेंगे अवाम बराह रास्त मुतासर ना हो। गैस का गर्दिशी कर्जा जीरो करना है। तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे रोकेंगे। वजीर खजाना ने पेट्रोल पर लेवी 50 रुपए तक पहुंचने की तस्दीक की। साथ ही कह दिया डीजल पर लेवी अभी मजीद 10 रुपए बढ़ेगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 400 अरब रुपए कर दिया जाएगा।
जो ये हमें टैक्सेस लगाने होंगे और हमारी हद्दुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स न लगे जो कि डायरेक्टली गरीब, इनडायरेक्ट तो असर होता है लेकिन डायरेक्टली किसी भी आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ न बने। हम जो अनटारगेटेड सब्सिडीज है उसको हम मिनिमाइज करें। जैसे मैंने कहा कि वैसे पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये सारी चीजें, जो हमारा पेट्रोलियम सेक्टर उसमें गैस के सर्कुलर डेट में फ्लो को हमने जीरो करना है। पेट्रोल पे 50 रुपए की लिमिट हम पूरी कर चुके हैं माजी में, जो 50 रुपए की डीजल पे थी उसमें 40 पूरे हो चुके हैं। तो इस पे जो बैलेंस है 10 रुपए, वो हमें 5 रुपए 1 मार्च 1 अप्रैल को ऑटोमेटिकली दैट हैड टू बी डन। IMF से बात बन गई है, 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलने का इम्कान है। इसहाक डार ने मुज़ाकरात के बाद अवाम पर महंगाई की छुरी चलाकर ऑल इज वेल का दावा कर दिया। कहा IMF से मुआहिदे को मुकम्मल करने के लिए तगो-दौ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने प्रोग्राम पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई है। कल फाइनल राउंड का इख्तिताम हुआ, तमाम मामला तय पा गए हैं। जो है वो 1.2 बिलियन डॉलर की 894 मिलियन SDR वी विल बी एंटाइटल्ड टू इस रिव्यू के नतीजे में इंशाल्लाह, और वो हमें ऑब्वियसली रिलीज होगा वंस एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो उसको अप्रूव करेगा। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि MEFP के साथ के ऊपर डिस्कशन इंशाल्लाह हमारी उनसे मंडे से शुरू हो जाएगी। कल रात हम ये तय हो गया था, पहले ये था कि शायद वो वापस जाके देंगे, लेकिन कल हमने प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग से पहले उनको ये इंसिस्ट किया कि ये आप हमें रिलीज करके जाएंगे। ये कोई एबनॉर्मल चीज नहीं है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ये ना हर प्रोग्राम में फॉलो होता है। और वीकेंड के ऊपर और फिर मंडे को उनके साथ हमारी ऑब्वियसली वर्चुअल मीटिंग होगी और फिर हम उसको आगे लेके चलेंगे। जो कुछ किया पिछली हुकूमत ने किया, हमारा कोई कसूर नहीं। इसहाक डार ने हस्बे मामूल सारा मलबा इमरान खान की हुकूमत पर गिरा दिया, अवाम को महंगाई का तोहफा भी दिया, साथ ही कह दिया कौम दिल बर्दाश्ता ना हो, फिक्र की कोई बात नहीं। कुछ शोबों में इस्लाहात पाकिस्तान के मफाद में हैं। वजीर खजाना ने कहा कि साबिक हुकूमत के किए गए मुआहदे पर अमल कर रहे हैं। डिफॉल्ट की बात करने वालों को समझाएं कि मुल्क को बदनाम ना करें। मैंने तो नहीं कहा कभी डिफॉल्ट, मैंने हमेशा कहा कि लोग तो यही ना उनको समझाएं कि पाकिस्तान को इस तरह बदनाम ना करें कि डिफॉल्ट हो गया, पार्लिस खत्म हो गए, हम डूब गए। फिर इधर आपका प्राइम मिनिस्टर जाके कहेगा दूसरे मुल्कों में, जो कि कहा करता था कि जी हम डेट ट्रैप में हैं, हम करप्ट कंट्री हैं, और साथ कहता था कि इन्वेस्टमेंट करें, तो बेवकूफी आगे इन्वेस्टमेंट करेगा आपके मुल्क में। तो हमें अपने हर बंदे को अपने मुल्क के इंटरेस्ट भी रखना चाहिए कि मैं थोड़ा सा फ्लैग तो हो जाएगी मेरी स्टेटमेंट, लेकिन उसका मुल्क के ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा। कितने मुल्क है जो कहते हैं जी हमारा 100% से ऊपर चला गया है डेट टू पब्लिक डेट टू GDP, हम मर गए हैं। अमेरिका कहता है, यूरोप कहता है, जापान कहता है, हमें बड़ा शौक है, हम 73% है। हम हर रोज ये मेक श्योर करते हैं कि हम ऐसी चीजें कहें, ये अच्छी बात नहीं है। पूरी राम कहानी सुनाई, मुज़ाकरात से मुतालिक एक बात तफसील से बताई। जब सवालात की बारी आई तो जान छोड़ाई। इसहाक डार महंगाई में इजाफे पर सहाफियों को मुतमईन ना कर सके, सवालात से कन्नी कतराने की कोशिश करते रहे। जब बात ना बनी तो ECC मीटिंग का बहाना करके उठ गए। 4 महीने में इकट्ठे करना नहीं, साल का इस तरह नहीं ना। तुसी अपना जो पुरानी स्टेटमेंट साबित करना चाहते हो ना, 170 अगर ये इस फिस्कल ईयर में लेना है, लेकिन यू आर रॉन्ग वंस, इसलिए कि हाउ कैन यू मल्टीप्लाई, खत्म हो गया, इस वन ऑफ, ऑफ कोर्स इज वन ऑफ। नहीं होते यार, ये तो कभी नहीं होता ना इस तरह की चीजें। आप जो मेयर्स ले रहे हैं आपने 170 अरब के लिए, अब उसको हाइपोथेटिकली कहें जी टाइम दे दो, वो तो ना लगा ना दिया किसी ने। बस जी, थैंक यू वेरी मच, मेरी ECC है जी, थैंक यू। इसहाक डार की बातें आदाद शुमार का हेर फेर है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, इसहाक डार पूरे तरीके से बात नहीं बता रहे, इनकी बात पर यकीन नहीं। मार्च अप्रैल में डीजल पर 5-5 रुपए बढ़ाएंगे, इससे पहले क्या होगा, 5-5 अरब रुपए बढ़ाएंगे तो ये 850 अरब कैसे पूरे करेंगे। IMF इनसे सब मुतालबात पूरे करवाएगा। मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज मिलेगा तो उसको पढ़कर मजीद बात करेंगे। हमने तो कहा लगेंगे, लेकिन मेरा तो ख्याल था कि ज्यादा लगेंगे, जिसका मतलब है कि 850-55 बिलियन रुपए की हमने पूरे साल में लगानी है। उन्होंने कहा वो लगेंगे, अभी वो 5-5 रुपए लगा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि ये और जाहिर है आने वाले दिनों में ये ज्यादा हो जाएंगी। पीरियड जो है इसको बढ़ाया जाएगा, और अभी तक तो सिर्फ 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस की बात हो रही है। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।